अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 22 सूरह यासीन. आप सब कुरान खोल लीजिए, कुरान की तिलावत होगी, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बाजी. चलिए मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Sadaqallahul Azim. Shamim, I am hosting you. You make me the co-host. My network is a little unstable, so this will help inshallah. चले आज का सबक शुरू करते हैं. पिछली क्लास में क्या पढ़े थे हम? कि अल्लाह ताला क्या करेंगे. अल्लाह ताला ने फरमाया था 3 बार हम ही क्या करेंगे, मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे. नंबर 1. नंबर 2 क्या फरमाया था? वनक्तुबू, और हम लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा, उनके तमाम आमाल. काइंडली शेयर द स्क्रीन. और नंबर 3 क्या फरमाया था? और लिखते हैं हम उनके आसार, उनके ट्रेसेस,
ان کا امپیکٹ، ان کے انفلوئنسز، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو احصیناہ شمار کیا ہم نے اس کو، یعنی ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کس میں؟ فی امام مبین، ایک کلیئر کٹ واضح روشن کتاب میں، اعمال نامے میں، اور وہ سب کہاں رکھا جاتا ہے؟ لوح محفوظ میں. So that was about ayat 12. کل ہم لوگوں نے کافی کچھ پڑھا عمل کے بارے میں اور آثار کے بارے میں. کیا سمجھ آئی تھی بات آثار کے بارے میں؟ کوئی بتائے گا کیا ہوتے ہیں آثار جو لکھے جاتے ہیں؟ اینی بڑی؟ یہ آثار مینس امپریشن، جو امپریشنس. دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ لکھے دیے جا رہے ہیں. وہ تو ہمارے عمل لکھے جاتے ہیں، لیکن امپریشنس کی کیا بات تھی کہ میرے آپ عمل دوسروں کا پر، impact ہے. ہاں دوسروں پر آپ اپنا کیا امپریشن چھوڑتے ہو اس دنیا میں. لوگ آپ کو دیکھ کر کیا سیکھتے ہیں، آپ کی باتوں سے کیا سیکھتے ہیں، آپ کے ہاؤ ڈو یو کیری یور سیلف، یور ایٹیٹیوڈ، یور کنڈکٹ، آپ کے اخلاق، آپ کے مینرز، اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے. پھر کیا آپ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو؟ کیا آپ توحید پر ہو؟ یا ابھی بھی آپ شرک میں پڑے ہو تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو کاپی کر کے اس شرک میں پڑھتے ہو، کفر میں پڑھتے ہو، بدعتوں میں پڑھتے ہو. تو آپ کیا امپریشنز چھوڑ کر جا رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا. سو میری زندگی صرف میری زندگی نہیں ہے، یہ اس کا جو کیومولیٹیو ایفیکٹ ہوگا، میری زندگی کا دوسروں پر جو اثر میں چھوڑتی ہوں اس کا بھی مجھے حساب دینا ہے. تو میری جو مرضی آئے میں وہ کروں ایسا نہیں ہے. یہ دنیا، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں ہر چیز، ہر نعمت، ہر ایکشن کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے. اب دیکھیے ایک حدیث، کچھ حدیث اس کے بارے میں پڑھنی باقی ہے، اس کے بعد we'll move to next آیت انشاءاللہ. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے یعنی کسی بھی عمل سے غافل ہوتا تو تیرے قدم کے نشان سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے. پھر سے سنیے، اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل، کسی ایکشن سے غافل ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ تیرے قدم کے نشان. اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قدم کے نشان اور تیرے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. تیرے جتنے قدم اس کی فرما برداری میں اٹھتے ہیں سب اس کے یہاں لکھے ہوئے ہیں. تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھا لے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر قدم ہمارا نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ ہمارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی کچھ سیرت کے واقعات ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ مسجد نبوی کے آس پاس، کہاں ہے مسجد نبوی؟ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ میں، مدینہ شریف میں. تو مسند احمد کی روایت ہے کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات خالی ہوئے، some houses were vacant. تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہیں پر مسجد کے قریب مکانات میں آ بسے. کیا سوچا انہوں نے کہ یہاں پہ کچھ گھر خالی ہوئے اور ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ بہت دور ہے مسجد سے،
تو کیوں نہ ہم لوگ یہاں آ کر بس جائے. جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنو سلمہ یعنی قبیلہ سلمہ کا، بنو سلمہ کا قبیلہ، اپنے مکانات میں ہی رہو، جہاں تم ہو وہیں پر رہو، تمہارے قدم اللہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم اللہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم اپنے دور علاقے سے چل کر مسجد نبوی تک آتے ہو تو جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے اتنا تمہاری نیکیوں کا ذخیرہ بڑھے گا. حدیثوں سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارا ہر قدم، ہر ایکشن، ہر نیت سب اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مدینہ کے ایک شخص کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز پڑھا کر آپ نے فرمایا، کاش کہ یہ اپنے وطن کے باہر کہیں فوت ہوتے. کیا فرمایا؟ کاش کہ یہ اپنے وطن کے باہر کہیں فوت ہوتے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب کوئی مسلمان غیر وطن میں فوت ہوتا ہے، غیر وطن یعنی اپنے ریسیڈینشل سٹی سے باہر، تو اس کے وطن سے لے کر وہاں تک کی زمین کے ناپ کے برابر اسے جنت میں جگہ ملتی ہے. کیا فرمایا؟ کہ اس کے وطن سے لے کر وہاں تک کی زمین جہاں اس کی موت ہوئی وہ ناپ کر اس کے برابر جنت میں جگہ ملتی ہے. سبحان اللہ. کبھی آپ کو یاد آ رہے ہوں گے آپ کے کوئی رشتہ دار جو اپنے وطن سے باہر کہیں فوت ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس عطا کرے انشاءاللہ. آمین. اب کیا ہوا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد کی طرف اور میں لمبے لمبے قدم اٹھا کر چلنے لگا تو میرے ساتھ کون تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھے اشارہ کیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدموں سے چلو. جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قدم کے نشان لکھے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر اللہ کی فرما برداری میں لگانے ہیں انشاءاللہ. یہ حدیث لاسٹ ٹائم شیئر نہیں کی تھی اس لیے آج شیئر کر دی. اب انشاءاللہ آگے بڑھتے نیکسٹ آیت پر، آیت نمبر 13. دیکھیں نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، ٹاپک چینج ہو رہا ہے. بھلے ٹاپک چینج ہو لیکن پچھلی آیتوں سے کنیکٹڈ ہی ہے. ایک واقعہ یہاں پر ہم کو ملتا ہے. آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ، وہ کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر کیا ہے؟ ضرب ورڈ ملتا ہے اس میں. ضرب کا مطلب دو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ مارنا، مار لگانا، چوٹ پہنچانا، اور دوسرا ہوتا ہے بیان کرنا. اور اس پر تشدید بھی، تشدید نہیں، جزم ہے با پر. تو یہ کیا ہو گیا؟ سنگولر میں آرڈر ہے، کمانڈ ہے. کس کو کمانڈ کر رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بیان کر دیجئے، آپ پیش کیجئے، لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان کے لیے پیش کیجئے. یہ مکی سورہ ہے تو صحابہ اکرام اور مکے والوں کے لیے کیا پیش کیجئے؟ مثلاً ایک مثال، ایک واقعہ، ون سٹوری، ایگزامپل دیا ہے. اصحاب القریتی،
वो किसकी स्टोरी है? असहाबी रहने वालों की, करियती एक बस्ती के रहने वालों का वाकया इन लोगों के पास बयान कीजिए। क्या है वो वाकया? इज, जब, जा अहल मुरसलून, जब आए उसके पास, अल मुरसलून, मुरसलून में रसूल वर्ड निकलता है और रसूल के माने क्या होते हैं? कोई बताएंगे? जब आए उस बस्ती में, उस बस्ती के पास, मुरसलून, रसूल, मुरसलून में रसूल वर्ड मिलता है। कासिद, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले। ओके, और कोई किसी को पता है रसूल का मतलब क्या होता है? जिनके ये ऊपर बुक रसूल जिस नाज़िल पर हुई। किताब उतरती है और नबी जिस पर किताब नहीं उतरती। खदीजा, एक जी। मिनट बेटा, जरा दूसरों को भी थोड़ा बोलने दो तो उनको भी समझ में आएगा। ओके, आपका जवाब सही है, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम अदर्स आल्सो। हाँ बताओ, कौन कह रहा था कुछ? रसूल का मतलब क्या है? ईश्वर। मैं जी मैं बोली थी जिनके ऊपर किताब नाजिल हुई अल्लाह ताला के तरफ से। अच्छा, और कोई आंसर? शगुफ्ता, बोलिए शगुफ्ता। मैसेज देने वाला, ओके, खबर देने। खबर देने वाला। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए आप लोग इसका मीनिंग। मुकद्दसा बोलो। जीरो, नई हिदायत और अहकामात के साथ मैसेंजर आते हैं। ओके, तो रसूल का सिंपल मीनिंग लिख लीजिए पहले। रसूल का मीनिंग है भेजे हुए, भेजे हुए। ठीक है, रसूल का मतलब है भेजे हुए। अब क्या है इस आयत में कि जब आए उस बस्ती में अल मुरसलून, अल्लाह के भेजे हुए। तो रसूल जो होते हैं वो अल्लाह के भेजे हुए बंदे होते हैं जो पैगाम लाते हैं, अल्लाह का मैसेज लाते हैं। एंड यू आर राइट कि फर्क है रसूल और नबी में। तो रसूल और नबी में क्या फर्क है? रसूल जो होते हैं उनको एक नई शरीयत देकर भेजा जाता है, उनके ऊपर किताब नाजिल होती है, वो रसूल होते हैं। और नबी कौन होते हैं? जो उसी रसूल की शरीयत को आगे पहुंचाते हैं, उनके ऊपर कोई नई किताब नहीं नाजिल होती, वो प्रीवियस रसूल के ही किताब, उसकी शरीयत को आगे पहुंचाने वाले होते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रसूल एंड नबी। इससे हमें पता चला कि हर रसूल नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। समझ में आ गया? और ये सब अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर्स। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस बस्ती का वाकया सुनाइए जिस बस्ती में आए, उस बस्ती में हमारे भेजे हुए, अल्लाह ने भेजे उनके पास अपने मैसेंजर्स। आयत 14, इज, जब, अरसलना, जब भेजा हमने। देखिए अरसलना में फिर से रसूल वर्ड मिलता है, रूट वर्ड। तो जब भेजा हमने, हम कौन है? ना यानी हम, कौन? अल्लाह ताला। जब भेजा हमने इलैहिम, उनकी तरफ, उस बस्ती की तरफ, क्या भेजा हमने? इस्नैनी, इस्नैनी यानी टू। इस्नैनी का मतलब क्या होता है? टू, दो। दो कौन भेजे? यानी दो रसूल भेजे, उस बस्ती की तरफ हमने दो रसूल भेजे। फकज़्ज़बूहुमा, फ यानी फिर, कज़्ज़बू, कज़्ज़बू का मतलब वो झुटलाया, झुटलाए गए, हुमा वो दोनों, उन दोनों को झुटलाया उस बस्ती ने, यानी उस बस्ती के रहने वालों ने उन दोनों अल्लाह के रसूलों को झुटलाया। फअज़्ज़ज़ना, फिर, फ यानी क्या? फिर, अज़्ज़ज़ना,
پھر مدد دی ہم نے، پھر کیا کیا ہم نے؟ مدد بھیجی. کس نے بھیجی؟ اللہ نے مدد بھیجی، قوت دی، سپورٹ کیا، اسٹرینگڈن کیا. بثالثن، بی یعنی ساتھ، ثالثن تیسرے کے، تیسرا بھیجا اور تیسرے کے ساتھ مدد کی. اب یہ تیسرا کون ہے؟ رسول. تو پہلے اس بستی میں کتنے رسول آئے تھے؟ 2. کس نے بھیجے؟ اللہ نے. تو کیا کیا بستی والوں نے؟ جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو، تم نہیں ہو اللہ کے رسول، ہم نہیں مانتے تم کو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ عززنا، پھر اللہ نے مدد کی، اسٹرینگڈن کیا ان کو. کس کے ساتھ؟ بثالثن، تیسرے رسول کے ساتھ. یعنی ایک تیسرا رسول بھیجا ان کی مدد کے لیے. پھر کیا ہوا؟ پھر قالو، پھر انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ اب کون ہے یہ؟ تینوں ہو گئے نا، تینوں رسول. تو ان تینوں رسولوں نے کہا، کیا بولے تینوں رسول؟ انا، بے شک ہم. کیا بولے تینوں رسول؟ انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں. ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بنا کر، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا میسج لے کر اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تمہاری طرف. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے آگے آیت 14. قالو، انہوں نے کہا، ما انتم، دیکھو ابھی ان لوگوں نے کیا کہا. کس نے کہا ابھی؟ کس نے کہا؟ بستی والوں نے، بستی والوں نے. بستی والوں نے. ویری گڈ. بستی والوں نے کہا، ما انتم، ما یہاں پر نہیں کے فارم میں ہے، نہیں ہو تم، نہیں ہو تم سب، all three of you، الا، سوائے، مگر، بشرن، تم سب نہیں ہو مگر کیا ہو؟ ایک انسان، ایک انسان ہی تو ہو. مثلنا، ہم جیسے، مثل کہتے ہیں جیسے، لائک، نہ ہم. یو پیپل آر ہیومن بیئنگس جسٹ لائک اس، ہماری طرح تم بھی بس انسان ہی تو ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہم تم کو کیوں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تم ہمارے طرح انسان نظر آ رہے ہو ہم کو. کھانا کھاتے ہو، بازار جاتے ہو، شاپنگ کرتے ہو، اور کھانا کھانا، پانی پینا، پھر ٹوائلٹ جانا، ایوری تھنگ از جسٹ لائک اس ہیومن. تو پھر ہم کیوں مانے کہ تم اللہ کے رسول؟ کیا ہے نشانی تمہارے پاس؟ وما، اور نہیں، انزل الرحمن، اور کیا کہا انہوں نے؟ اور نہیں نازل کی الرحمن نے، من شیئن، کوئی چیز، اس نے کوئی چیز نہیں نازل کی ہے. کس نے؟ الرحمن نے. کون ہے الرحمن؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یس. اور الرحمن کی میننگ کیا ہے؟ خوب رحم کرنے والا. نو، دیٹس اے رانگ آنسر. الرحمن کے میننگ کیا ہے؟ شگفتہ، ثنا کو کو مہربان، ہوسٹ بنا دو. مہربان. کون بولا باجی، مہربان؟ میں شگفتہ. اچھا. مقدسہ تم کیا کہتی ہو؟ رحم یعنی ماں کے اوم سے آتا ہے، جس طرح سے ماں محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اس طرح کی محبت. اچھا، میں سن رہی ہوں آپ لوگوں کے جواب، بعد میں بتاتی ہوں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. شمیم ذرا ثنا کو کو ہوسٹ بنانا. ہاں فاطمہ تم بتاؤ. پالنے والا. نہیں، غلط آنسر. ثنا؟ باجی خوب رحم والا، نہایت ہی مہربان. کتنا مکس اپ کرتے ہیں نا ہم لوگ.
इतना मिक्सअप कि क्या बताऊं मैं। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड टू वर्ड की क्लास होनी चाहिए, कितना मिक्सअप हो रहा है। तबस्सुम नाज को और सुरैया को होस्ट बना देना शमीम। अभी जरा लिख लीजिए भाई, मीनिंग्स और डिफरेंसेस लिख लीजिए। सुरैया बताएगी बिल्कुल सही, आई नो। यस सुरैया, सुरैया और रहमान का मीनिंग बताओ। बाजी वो बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है बस बाजी। बस, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मीनिंग बताओ। ओके, तुम सही बता रही हो, वेट बी देयर। सुरैया बता रही है, आंसर इज राइट, लिख लीजिए। और रहमान बड़ा मेहरबान। रिपीट करो सुरैया। अर रहमान बड़ा मेहरबान। दैट्स इट, इसमें कोई मिक्सअप नहीं करेंगे अभी। अभी अर रहीम की मीनिंग बताओ सुरैया। निहायत बार बार रहम करने वाला। वेरी गुड। ये जो अभी मुकद्दस आप बता रही थी, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत, रहम, ये अर रहीम की सिफत है। तो अर रहीम इज इक्वल टू बार बार निहायत रहम फरमाने वाला। अभी कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अभी किसी ने पालने वाला भी कहा था, तो पालने वाले के लिए क्या वर्ड है सुरैया? रब, रब। रब्बुल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रब जो है अल्लाह की सिफत, जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो रब जो है उसका मीनिंग है पालने वाला। ओके, मिक्सअप नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। आप लोगों ने लिख लिया? ईश्वर तीनों मीनिंग्स लिखे आपने, जरा पढ़ के सुनाओ फटाफट। अर रहमान बड़ा मेहरबान, अर रहीम बार बार रहम करने वाला, रब पालने वाला। वेरी गुड। तो किश्वर लिख रही है, और कितने लोग लिखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग? वेरी गुड। अगर हम सिंसियरली सीरियसली सीखना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा भाई। हमारी मेमोरी तो ऐसी है नहीं कि एलिफेंट मेमोरी है, सब कुछ बगैर लिखे थोड़ी याद होता है। और बार बार लिखा जाएगा ना तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो कहाँ थे हम लोग कि ये जो बस्ती वाले हैं, ये बस्ती वालों ने क्या कहा कि हम क्यों माने तुमको रसूल? नहीं मानते हम तुमको रसूल। क्यों? क्योंकि तुम हमारी तरह बिल्कुल इंसान ही तो हो, और नहीं नाजिल किया और रहमान ने कुछ भी, कोई चीज नहीं नाजिल की। सब झूठ बोलते हो तुम लोग। इन नहीं, अंतुम तुम, इल्ला मगर, नहीं हो तुम मगर, तकज़िबून तुम झूठ बोलते हो। किसने कहा ये? किससे? बस्ती वालों ने किससे कहा? तीनों रसूलों से कहा। तीनों रसूलों से कह दिया, ठीक है। अभी आप लोग ये सोचिए कि ये वाली सूरा जो हम पढ़ रहे, सूरह यासीन, और ये मक्की सूरा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ऐसे ही वहां के लोग झुटलाते थे, कहते थे हमारी तरह इंसान ही तो हो। कौन आपको रसूल बनाया? क्या है निशानी आपके पास? ना आपके पास माल है, ना पोजीशन है, ना कुछ है, और आप तो फरिश्ते भी नहीं हो। अगर अल्लाह को रसूल भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जैसे आपकी कौम आपको झुठला रही है ना, तो सुनिए, एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला वही के जरिए ये वाकया बताते हैं। और कहा जाता है ये बस्ती जो है, ये टर्की के बॉर्डर पर, शाम और टर्की, सीरिया और टर्की के बॉर्डर पर ये बस्ती है। इसका नाम भी कुछ आता है तफसीर में, बट हम लोग नाम में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें काम सीखना है, नाम से क्या लेना देना। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए आप भी, और अपने कौम वालों को भी सुनाइए, अपनी उम्मत को, कि इससे पहले भी अल्लाह ने ऐसे रसूल भेजे बस्तियों में, और उन बस्ती वालों ने ऐसे ही झुटलाया जैसे आपको आज मक्का वाले झुटला रहे हैं। सो दिस इज नथिंग न्यू।
वो क्यों झुठला रहे? हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले मक्का वाले क्या कहते थे, क्या लक़ब दिया हुआ था उनको इस्लाम से पहले? सादिक और अमीन, सच्चे और अमन। सादिक, यस, सादिक और अमीन। सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला है ये इंसान, और अमीन ट्रस्टवर्दी, अमानतदार। सो ही इज द मोस्ट ट्रूथफुल एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी। लेकिन जैसे उन्होंने अल्लाह का मैसेज बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पे वही आती है, तो फिर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और झूठा कहने लगे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला एक ऐसी ही सिमिलर स्टोरी जो कि सच्चा वाकया है वो बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों बताया? क्यों बताया? ताकि आप गमगीन ना हो कि आपसे पहले भी लोगों को झुटलाया, आपको मोटिवेट करने के लिए। एग्जैक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन ना हो, ताकि उनको मोटिवेट करे अल्लाह ताला, एनकरेज करे, यू आर नॉट द ओनली वन, आपसे पहले भी कई रसूल आ चुके। सूरा की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। अगर आप सूरा की शुरुआत पे चलो तो क्या फरमाया था आयत 3 में? इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से है, हमारे भेजे हुओं में से है। आप अकेले नहीं हो, आपसे पहले भी हमने कई रसूलों को भेजा है। और लोग क्यों झुठलाते हैं हमेशा? क्या प्रॉब्लम होती है लोगों की? हर दौर में इन रसूलों को, नबियों को क्यों झुठलाया गया? बताओ। बाजी क्योंकि उनको अपने बाप दादा का ही रिलीजन फॉलो करना था। ओके, और कोई रीजन? एनी मोर रीजंस झुठलाने का? और कोई वजह आपको नजर आती है, समझ आती है अम्मी? पर सन, मानना नहीं होता जी। उन लोग को मानना नहीं था। हाँ, उनको मानना नहीं था। वेरी गुड। और कोई वजह? बाजी अनम तुम बस कुछ बोल रही थी? ये बाजी शमीम? उनको वो ह्यूमन बींग्स ही लगते थे, उनको लगता था कोई गैब से आएगा, फरिश्ते आएंगे, एंजल्स आएंगे, पर हाँ वो तो ह्यूमन बींग्स थे, दे कुड टच एंड हाँ फील देम, तो इसीलिए वो लोग बिलीव नहीं करते। हाँ, ये उनका लॉजिक भी तो सही था एक हिसाब से, कि भाई हमारे जैसे इंसान है, अचानक से एक दिन उठ के कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल है, तो हम क्यों माने? दैट इज वन ऑफ द रीजंस। शगुफ्ता? और रसूल जो भी आए थे वो लोग अल्लाह की तरफ से थे, और वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए थे, तो ओके, लोगों को रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करना था। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद है लोगों को, कि हमारे ऊपर क्यों तुम जबरदस्ती करते हो, हमारे ऊपर क्यों ये बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो। वेरी गुड। वही मानती? यही बात बाजी, उनकी सरदारी जाने की, उनकी कुर्सी छिन जाने की, कि उनका मानने के हाँ, बाद ये हम ये कैसे ये फॉलो करेंगे तो फिर हमारा सब चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत से रीजंस थे कि एक तो हम, देखिए, किसी की बात को मानना बोले तो हम छोटे हो जाएंगे। ये जो एक सोच है ना इंसान की, ये तकब्बुर है। सबसे पहले तकब्बुर किया था इब्लीस ने, कि मैं क्यों बड़ा मानूं इसको, मैं क्यों सजदा करूं। तो जहां मैं आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, वहां फिर वो ये नहीं सोचते कि अरे ये तो बात हमारे फायदे की ही कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। नहीं, सीधा धड़ल्ले से उनको झुठला दिया। सेकंड, कि हमारी सरदारी जाएगी, फिर लोग हमको नहीं मानेंगे, इनको पूजने लगेंगे या इनको फॉलो करने लगेंगे, तो ये लीडर बन जाएंगे, तो वो भी इनको पसंद नहीं। फिर हम पर रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, फिर हमें जो ये बताएंगे वही करना पड़ेगा, हमारी मर्जी, हमारी डिजायर्स, वो सब बाजू रह जाएगी। और क्या वजह है? और ये भी था कि झुठलाने की बात क्या होती है। देखिए, एक होता है कि मैं नहीं मानती, एक होता है कि मैं नहीं मानती, जाओ तुमको जो करना है करो। लेकिन झुठलाने से क्या होता है कि मैं अगर कह दूं कि ये झूठा है, फिर बाजू वाली भी कहती है, ये भी कहती है, वो भी कहती है, सब कहते हैं कि ये झूठा है, झूठा है। तो क्या हो गया? इसका असर, जो अभी आसार की बात हो रही थी, कि इसका असर पूरी सोसाइटी पर होने लगा, और सब लोग कहने लगे झूठा है, झूठे है, झूठे है, इनको मत मानो, ये झूठे। गॉट इट? तो इसका असर
ज्यादा लोगों पर होता है जब झुटलाया जाता है। ठीक है, अब ये लोग भी झुटलाए गए। अब इन लोगों ने क्या जवाब दिया? अच्छा, यहाँ पर जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि ये क्या कहते हैं कि ये नहीं नाजिल किया गया और रहमान की तरफ से कुछ भी। तो इससे क्या बात पता चलती है कि वो अल्लाह को जानते हैं ऑलरेडी, अल्लाह को और रहमान भी मानते हैं ऑलरेडी कि सारी मेहरबानियां, सारी नेमतें अल्लाह के पास से आती है, वो सब कुछ मानते हैं वो। फिर किस चीज का इनकार था, किस चीज का झुटलाना था? कि अल्लाह ने तुमको नहीं भेजा, तुम झूठ बोल रहे। गॉट इट? तो ये लोग बिल्कुल काफिर थे ऐसी बात नहीं थी, कि ऐसा इनका ईमान नहीं था ऐसी बात नहीं थी। बट ये किसी ने कहा ना कि रेस्ट्रिक्शंस हम पर आ जाएंगी, तो अब हम रेस्ट्रिक्शंस को क्यों फॉलो करें, बंध जाएंगे। ठीक है, अभी आयत 16 में देखते हैं कि रसूल क्या जवाब देते हैं। 16, कौलू। देखिए, कौलू का मतलब क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में आता है कि उन तीनों रसूलों ने कहा। क्या बोले तीनों रसूल? रब्बुना, हमारा रब। क्या फरमाया? तीनों रसूलों ने कहा रब्बुना, हमारा रब। या अलमू, इसमें इल्म वर्ड मिलता है, आइन लाम मीम, इल्म। हमारा रब वो इल्म रखता है, वो जानता है। क्या जानता है? इन्ना, कि बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, लमुरसलून, बेशक भेजे हुए हैं। हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ एज अ रसूल, मैसेंजर्स भेजे हुए हैं। तुम मानो या ना मानो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम मानोगे तो फायदा तुम्हारा होगा, अगर तुम झुटलाओगे तो वी डोंट केयर, क्योंकि जिसने भेजा है ना, जो रब है ना, उसको तो मालूम है, उसको इल्म है, वो जानता है, क्योंकि उसी ने तो हमें भेजा है। तो तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे झुटलाने से ये बात साबित नहीं होती कि हम अल्लाह के रसूल नहीं है। ठीक है, आयत 17, वमा अलैना। क्या कहते हैं ये रसूल? उन लोगों ने कहा वो और माँ नहीं है, अलैना, हमारे ऊपर, नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी। इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इल्ला, सिवाय, अल बलागुल मुबीन, हमारी जिम्मेदारी और कुछ भी नहीं सिवाय इसके। सिवाय किसके? कि हमें तो बलाग का काम करना है। अल बलाग किसे कहते हैं? पहुंचा देना, पहुंचा देना। अल मुबीन, वाजे, क्लियर कट, बिल्कुल ओपन, क्लियर, सच, हकीकत जैसी है, बस वैसे के वैसे पहुंचा देना, वही हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक पोस्टमैन होता है, तो वो पोस्टमैन को कुछ नहीं पता है ना कि ये लेटर के अंदर क्या लिखा है। उसका काम है कि वो लेटर लाए और आप तक पहुंचा दे। अभी यहाँ पर तो ये पोस्टमैन नहीं है, नौजुबिल्ला, अल्लाह के रसूल है। तो इन लोगों को मैसेज जो पहुंचाना था, वो कैसे पहुंचाते थे? एज अ पोस्टमैन लेटर ला के पहुंचाते थे, और कैसे पहुंचाते थे? वही के जरिए बाजी उनको जो मिलता था। उनको वही के जरिए मिलता था, वो पहुंचाते कैसे थे लोगों तक? बताते थे जुबानी। सुरैया? तबलीग करते थे जब बाजी, वो अपने मतलब सुनाते कैसे थे। बताते? सुनाते थे बस। शगुफ्ता? वो लोगों के बीच जाके बैठ के उनको बताते थे, या मस्जिदों में भी लोगों को बैठ के बताते थे। ओके, और बाजी कोई? उसको बाय हार्ट कर लेते थे, हिफ्ज कर लेते थे। ओके, फहीम आंटी?
यही बाजी से के सबको खबर दे देते थे, खुशखबरी दो। अच्छा, ओके। फरा, अगर आपके पास सेम जवाब है तो मत दो, कुछ अलग है। फारा आप बोलो। मुझे ऐसा लगता है बाजी वो लोग खुद भी फॉलो करते थे, दे वुड लीड बाय वेरी एग्जांपल। गुड, वेरी गुड फारा, आई वाज लुकिंग फॉर दिस आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फर्क है एक पोस्टमैन में और एक रसूल में, कि ये सिर्फ जबान से बताते नहीं थे। अब वो मस्जिद में बताए या मजलिस में बताए या अकेले को बताए या मिंबर पे खड़े होके, बट दैट इज नॉट ऑल। वो अमल के साथ बताते भी थे, खुद भी अमल करते थे, और एहसन तरीके से दे वुड लीड विथ एक्शन, सेटिंग एग्जाम्पल, खुद अमल करके। अंडरस्टैंड नाउ? डू यू सी द डिफरेंस सना? जी बाजी। हाँ, तो सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि अमल करके दूसरों को उस पर अमल करने के लिए मोटिवेट करना, एग्जाम्पल सेट करना। ठीक है, लेकिन ये जो अल बलाग वर्ड है ना, इस बलाग वर्ड में इतना खजाना छुपा हुआ है। इंशाल्लाह ये बलाग वर्ड वी विल डिस्कस ऑन थर्सडे, कि क्या है ये बलागुल मुबीन। और सच में अगर हमें अपने अल्लाह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कितने लोग चाहते हैं हम में से कि हम लोग भी पहुंचाने वाले बने, कुरान को लोगों तक पहुंचाए, सिखाए। कितने लोग चाहते हैं और कर रहे ऑलरेडी, मेनी ऑफ अस। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अल बलागुल मुबीन क्या है। उसको हम डिटेल में थर्सडे के दिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या फरमाया इन रसूलों ने, कि हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि हम पहुंचा दे, जैसा है वैसा क्लियर कट। इसमें अपनी तरफ से ना कोई मिक्सचर, ना कोई एडिशन, ना कोई सब्ट्रैक्शन। जैसा है वैसी सीधी बात। ये नहीं कि सामने वाले को बात बुरी लगेगी, इन लोगों को बात समझ नहीं आएगी तो इनको हम ऐसा करते अभी ये नहीं बताते, ऐसा नहीं। जैसा अल्लाह ने फरमाया वैसा के वैसा पहुंचा दिया, बलागुल मुबीन। और कैसे पहुंचाया? सुन्नत तरीके से, मुस्कुराकर, प्यार से, हिकमत के साथ, और एग्जाम्पल सेट करके। और ये नहीं कि हम तो कैसे पहुंचाते हैं। अगर आप देखो कि मोस्टली जो मेजॉरिटी तबलीग करते हैं लोग, या जो स्टेज पर खड़े हैं, मिंबर पर खड़े होके, हम देखते हैं कि दे शाउट, इतना चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर वो बयान कर रहे होते हैं। क्यों भाई, ये कहाँ से सीखा? ये बलागुल मुबीन है क्या? ये सुन्नत तरीका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुरान ऐसे पहुंचाया लोगों तक? तो हम क्यों ऐसा चिल्लाते हैं, क्यों चीखते हैं? हमारे अखलाक, वो भी तो आसार है, वो भी तो लोग देख के वैसा ही सीखेंगे, isn't it? तो बिल्कुल ना किसी को डांटना है, डपटना है, ना चिल्लाना है। हम लोग बोलते हैं कि मैं इतनी बार तुमको समझाती हूँ, तुमको समझ नहीं आती। कोई टीचर कहती है कि मैं इतने दूर से आती हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, तुमने ये बोल दिया ना कि मैं इतने दूर से आती हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, तुम्हारा सारा अजर वेस्ट हो गया। तुम बोलोगे मैं इतनी मेहनत करके स्टडी करती हूँ तुम्हारे लिए, गया सब गया, इट इज अ लीकिंग बकेट। बस ये कहना है कि अल्लाह की खातिर, और दिल में गांठ बांध लेनी है कि मोहब्बत से, प्यार से समझाना है। मेरा काम सिर्फ समझाना है, मेरा काम हिदायत देना नहीं है। तो हिदायत देने का काम किसका है? बाजी वी कांट हियर यू। हिदायत देने का काम किसका है? अभी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है बाजी, बीच में गायब हो गई। अल्लाह ताला का। हिदायत देने का काम, वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, और कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो फिर हम लोग क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों चिल्लाते हैं जब किसी को कुछ सिखाते हैं?
बिल्कुल नहीं चिल्लाना है, ना डांटना है, ना गुस्सा करना है। हो सकता है कि आपके डांट डपट और गुस्से की वजह से वो लोग दीन से दूर हो जाए, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? ये किसके ऊपर आएगा बोझ? isn't it? तो बहुत प्यार और मोहब्बत से ये सुन्नत तरीका है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बलागुल मुबीन विल बी ऑन द थर्सडे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ इस वाक्य में आगे, है ना। कौलू, तो उन्होंने कहा। अब किसने कहा? ये जो बस्ती वाले लोग थे, अभी इन्होंने क्या जवाब दिया अभी सुनिए, और कितनी बुरी बात उन्होंने कही। ये लोग बस्ती वाले कहने लगे। अब देखिए, आपको ना हर जगह लिखना पड़ेगा ये कौलू किसके लिए आया है। बस्ती वालों ने कहा। इससे पहले की आयत नंबर 16 में आया था, 16 में कौलू रब्बुना, वो किसने कहा था? तीनों रसूलों ने। वेरी गुड। और उससे पहले आयत नंबर 15 में इन्होंने कहा था कौलू, उन्होंने कहा नहीं तुम मगर एक इंसान हम जैसे, इल्ला बशरुम मिसलुना। ये कौलू किसने कहा था? बस्ती वालों। बस्ती वालों ने। तो हर कौलू के नीचे आप लिख लीजिए कि ऐसे अल्लाह ताला ने कैसे बस आयत नंबर 13 से लेके फ्यू आयत में एक पूरा वाक्य हमको बता दिया। और हमारे यहाँ कहानियों में क्या होता है, हम लोग इतने सारे नाम लेते हैं, और जगह का नाम और टाइम और एरा, तो हमारी स्टोरी कितनी बड़ी हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में इन स्टोरीज को, वाकयात को बिल्कुल शॉर्ट में, और कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं, बस सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरीज में बहुत ज्यादा मॉरल हमको दे दिया अल्लाह ने। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कुरान। अब कौलू आयत 18, बस्ती वालों ने कहा, इन्ना बेशक हम, इन्ना बेशक हम, ततयरना। ततयरना में क्या वर्ड नजर आ रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है? ततयरना में क्या वर्ड नजर आ रहा है? किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा है, या मेरी आवाज नहीं आ रही? आयशा बोलो, आयशा। सुरैया तुमको क्या नजर आ रहा है ततयरना में? तैरना वाली। अच्छा, दैट्स रॉन्ग। आयशा आप बताओ। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैरन बाजी, परिंदा। वेरी गुड आयशा, राइट। ये कहाँ सीखे थे हम? सूरह मुल्क में सीखे थे ना, कि क्या नहीं देखा तुमने कि वो बर्ड्स तुम्हारे ऊपर उड़ते हैं अपने परों को फैलाकर। तो वही वर्ड है यहाँ पर। अभी मीनिंग इसका क्या आता है? उन्होंने कहा कि बेशक हम ततयरना, हम मनहूस समझते हैं तुमको, बिकुम तुमको। ततयरना हम मनहूस समझते हैं, बिकुम तुमको। अभी मैंने आपको बताया त्वैर तो परिंदे को कहते हैं, तो क्या परिंदे बर्ड्स मनहूस होते हैं? फिर ये वर्ड यहाँ पर त्वैर क्यों आया? तो ये समझ लीजिए कि वो जमाने में लोग जो है ना, ये शगुन, बदशगुन, अपशगुन, लकी, अनलकी, इसको है ना बहुत मानते थे। और ये लोग क्या करते थे कि एक बर्ड हाथ में लेते, कोई परिंदा केज में से, और फिर वो कहते कि हमको ये आदमी के बारे में पता करना है, कैसा है ये आदमी, और फिर वो बर्ड को छोड़ देते। अगर वो राइट डायरेक्शन में बर्ड उड़ा, राइट साइड में उड़ा, उड़कर गया, तो बोलते थे कि हाँ ये अच्छा है। और अगर लेफ्ट साइड में उड़ के गया तो बोलते थे कि ये क्या है, बुरा है, अनलकी है, मनहूस है। तो वो बर्ड्स के जरिए पता करते थे कि ये आदमी या ये काम सही है या गलत है, लकी है या अनलकी है। तो बर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर आया है। ठीक है,
تو उन्होंने कहा कि बेशक हम तो पाते हैं तुम लोगों को मनहूस, तुम लोग बहुत मनहूस हो, बदशगुन हो। किसने कहा? बस्ती वालों ने। किससे कहा? अल्लाह के तीनों रसूलों से कहा। क्यों कहा ऐसे? कि भाई तुम लोग जब से आए हो ना, तब से हम लोग का भेजा खा रहे हो, हमारा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। एक ही बात करते हो कि एक अल्लाह की बात मानो, शिर्क मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। और तुम लोग आए हो ना, तब से हमारा तो कुछ सही काम हो ही नहीं रहा, बल्कि जब से तुम आए हो हमारे सारे काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, और हमारा दिमाग भी खराब कर दिया है तुम लोगों ने, हमारे ऊपर बलाएं आ रही है, और हमारे लिए कोई खैर और बरकत तो तुम लाए नहीं अपने साथ, कि तुम हमको कोई बिजनेस बताओ, या हमारे लिए पैसा आए, या हमें कोई नेमतें हमारे लिए नाजिल हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं लाए तुम। जब से आए हो हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, हम पर बलाएं बरस रही है, तो तुम हमारे लिए बहुत मनहूस, अनलकी हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। ल इन, अभी आगे क्या कहते हैं देखो, यहाँ पर रुके नहीं इतना कह के, इनकी हिम्मत देखो। आगे कहते हैं ल इन, बेशक अगर, लम नहीं, तंतहू, बेशक अगर नहीं तुम बाज आए, तंतहू, इंतहा कहते हैं बाज आने को, टू स्टॉप, टू रिफ्रेन। इफ यू डू नॉट स्टॉप, अगर तुम यहाँ पर रुके नहीं, बाज नहीं आए, लनरजुमन्नकुम, तो क्या करेंगे हम? ल, बेशक, न, हम, फिर क्या मिला? क्या बचा इसमें? रा, जीम, मा, रजम। रजम का मतलब क्या होता है? पत्थर मारना। तो अगर तुम नहीं रुके, इफ यू डोंट स्टॉप, तो बेशक हम जरूर क्या करेंगे? रजम कर देंगे तुम लोगों। रजम करेंगे यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, संसार कर देंगे तुम लोग। वी विल स्टोन यू टू डेथ। समझ आया? ये रजम वर्ड कहाँ यूज होता है? कहीं पढ़े हो कुरान में? कौन से गुनाह की सजा है रजम करना? तहजीब आप बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजम है ना मैम? वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर राइट तहजीब। रजीम धुतकारे हुए को भी कहते हैं, द कर्स्ड वन, शैतान को। आफरा आप बोलिए। और हमने कुरान जी, में, जानिया की सजा भी है ना रजम, जानिया। वेरी गुड, वेरी गुड आफरा, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग अब जवाब देने लगे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग एक्टिवली सीख रहे हो और जवाब भी देते हो। और आपको याद भी है कि कुरान पाक में जो जानी है यानी जिना करने वाले को पत्थर मार मार कर, शादीशुदा जानी को जो ऑलरेडी मैरिड है और फिर भी उन्होंने जिना किया, तो उनको रजम की सजा है, पत्थर मार मार कर, जब तक कि उन्हें मौत ना आए, ओपनली पब्लिक के सामने पत्थर मार मार कर उनको हलाक कर देना। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत बदशगुनी हो, मनहूस हो, अनफॉर्चुनेट हो। बेशक अगर तुम अब नहीं रुके ना, तुम अपनी इस बात से, इस तबलीग से नहीं रुके, तो हम जरूर बजरूर तुमको पत्थर मार मार कर खत्म कर देंगे, संसार कर देंगे। यहाँ जरूर वर्ड किस में आया है? कौन से लेटर का मीनिंग जरूर है यहाँ पर? लाम बाजी, ल। नहीं मुकद्दसा, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, आप लोग बुरा नहीं लगा ना अगर आपको रॉन्ग कहा जाए तो, बट दैट इज, आई हैव टू टीच। तो बताओ, ऐसे ही सीखेंगे ना। सलमा आंटी आप बताइए, जरूर किस में मिला हमको? कौन से लेटर में जरूर मिला? सलमा आंटी बोलिए। और किसी को मालूम है? देखिए फिर से सुनिए, ल का मतलब है बेशक, अलबत्ता। न का मतलब है हम।
फिर क्या मिला, रजम, रजम यानी पत्थर मारना। इसके बाद जो नून पर तशदीद है ना, नून पर तशदीद नजर आ रही है, वो नून पर तशदीद जब आ जाए तो वो हो जाता है जरूर, श्योरली, फॉर श्योर। और कुम का मतलब क्या है, कुम का मतलब है तुम। अब देखिए एक वर्ड में कितने वर्ड्स मिले हमको, ल यानी बेशक, न यानी हम, बेशक हम, रजुम, रजम कर देंगे, पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, नून पर तशदीद यानी जरूर हम ऐसा करेंगे, किसके साथ, कुम, तुम्हारे साथ। एक वर्ड में कितने सारे वर्ड्स मिले सना। दिस इज क्लासिकल अरबिक, कुरानिक अरबिक, ये है अल्लाह का कलाम। एक एक वर्ड में चाशनी है, चाशनी, और बहुत मजा आता है ऐसे पढ़ने को और पढ़ाने को भी। फिर आगे देखिए, व का मतलब क्या है, और ल का मतलब फिर से बेशक, अलबत्ता, यमस्सन्नकुम, इसमें मस का मीनिंग है, मस का मतलब होता है छुएगी, टच, छूना, टच करना। और फिर से नून पर तशदीद है, तो फिर से नून पर तशदीद का मतलब क्या होता है, जरूर। अब पूरा मीनिंग पढ़ेंगे, और बेशक जरूर छुएगा, कुम यानी तुमको। सीख रहे हो आप लोग, व और ल बेशक, यमस्स यानी छुएगा, नून पर तशदीद यानी जरूर छुएगा, कुम तुमको, और बेशक जरूर छुएगा तुमको। क्या छुएगा, मिन्ना, हमारी तरफ से। मिन का मतलब होता है से, और ना यानी हम, हमारी तरफ से जरूर छुएगा तुमको। क्या छुएगा, अजाबुन अलीम, पनिशमेंट, सजा। कैसी सजा होगी, अलीम, दर्दनाक। कौन कह रहा है ये बस्ती वाले लोग कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं रुके, अगर बाज नहीं आए, तो हम जरूर पत्थर मार मार कर तुमको संसार कर देंगे, फिर जरूर छुएगा तुमको हमारी तरफ से, पहुंचेगा तुमको बहुत ही सख्त सजा पहुंचेगी। यानी धमकी दे दी उनको। किसने धमकी दी, बस्ती वालों ने। अल्लाह अकबर। यानी इतनी हिम्मत इन लोगों की क्यों, आज कहाँ से आती है इनको इतनी हिम्मत कि वो अल्लाह के रसूलों को ऐसी धमकी दे, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत। लाइल्मी की वजह से। सिर्फ ला इल्मी की वजह से नहीं आती, एक तो इल्म नहीं है, दैट इज अ गुड आंसर, लेकिन और हिम्मत इसलिए आती है उनके अंदर कि ये जो आए हैं ना, अल्लाह का अच्छा अच्छा मैसेज, अच्छी हिदायत देने वाले लोग, तो इनको जल्दी से हटाओ, जल्दी से इनको खत्म करो, भगाओ या मार डालो। इसलिए, वरना ये हमारे लिए क्या है, थ्रेट है, थ्रेट। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे थ्रेट को, ये हमारे लिए एक मुसीबत है। व्हाट इज थ्रेट, सुरैया। बाजी वही बोलने वाली थी, मुसीबत, परेशानी, हाँ हाँ, आफत, बाजी आफत। धमकी, आफत, आफत नहीं नहीं, धमकी तो ये लोग दे रहे हैं, अभी बस्ती वाले सोच रहे हैं कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, आफत है ये लोग। तो जल्दी से इनको जब हम हटा देंगे रास्ते से, तब क्या होगा कि हम लोग को चैन की सांस ले सकेंगे और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकेंगे। तो बस अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए इतनी हिम्मत है इनके अंदर कि वो रसूलों को धमकियां दे कि हम तुमको पत्थर से मार देंगे। अब देखिए कोई भी इंसान होता है, अगर उसको ये धमकी दी जाए किसी इंसान को कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो इंसान को सबसे ज्यादा तो अपनी जान ही प्यारी होती है ना। तो वो सोचता है जाने दो, अभी मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था, लेकिन ये लोग को नहीं मानना है, तो मैं अपनी जान तो बचाऊं। फिर वो वहां से हट जाता है, निकल जाता है। लेकिन अल्लाह के जो रसूल होते हैं, वो अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करते। क्या उनको होती है अपनी जान की परवाह।
کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا مشن ہی یہ ہے بلاغ المبین، کہ ہر حال میں اللہ کا میسج پہنچانا ہے، ہر حال میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، ان کی ویل وشنگ، یہی ان کا اصل مقصد ہوتا ہے، چاہے پھر جان کی بازی لگانی پڑے۔ تو اس لیے ان کو جو دھمکی انہوں نے دی اور منحوس کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے بہت منحوس ہو۔ جب سے آپ یہ بات کرنے لگے ہو، تب سے کیا ہوا ہے؟ آپ نے ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے کہ باپ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بیٹا کہتا ہے نہیں ہوں، بیٹا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، باپ نہیں ہے، بیوی نے اسلام قبول کر لیا، شوہر نے نہیں کیا، تو آپ نے تو گھروں کو توڑوا دیا ہے۔ تو جب سے آپ آئے ہو ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی ہو گئی، آپ منحوس ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ منحوس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، اور پھر یہ ہمارا پارا کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ آن تھرسڈے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس واقعے میں، سو اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ۔ تب تک ہم پہنچاتے رہے اللہ کا کلام۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔